and address the crowd a little better in a more directed way. हमें आप लोगों के बारे में ज्यादा पता होगा तो हम ज्यादा फोकस डिस्कशन कर पाएंगे. अभी तक केवल 60% लोगों ने जवाब दिया है. Is it true that thyroid patients are prone to catch corona? This is a very interesting question. Feeling not well anytime. Yes, we'll address those. Thyroid can be cured permanently. बिल्कुल सरबजीत कौर जी, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. होलिस्टिक तरीका जिससे हम थायराइड को अटैक कर सकें, मैनेज ना करें बल्कि उसको कंप्लीटली क्योर कर सकें. Right, so all of the symptoms, Bhumika, that you have suggested privately to me. One request to everyone: if you are chatting, please remove the private window. You don't have to select, you have to select everyone. Everyone select करिएगा ताकि सब लोगों की बातें, आपकी बातें सभी लोगों तक पहुंच सके. All right, perfect. थोड़ा सा समय बीत चुका है और भी लोग आ रहे हैं, but we'll start. गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. संडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, शाम का समय बीत रहा है और बहुत अच्छा मौसम भी है बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हालांकि ये पॉल्यूशन का चरम है. हम इस समय दिल्ली से बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नोएडा में हूँ, तो मौसम वैसे तो अच्छा है लेकिन पॉल्यूशन बहुत है. उसके विपरीत अभी हम बात करेंगे थायराइड के बारे में. हम लोग बात करेंगे अच्छी चीजों के बारे में. हम लोग उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन चीजों से होलिस्टिक तरीके से आप यूज करके अपने शरीर के साथ में ओवरकम कर सकते हैं अपनी क्रॉनिक कंडीशंस को. वी वुड बी टॉकिंग अबाउट holistic ways and methodologies to overcome your chronic conditions which you have been suffering from ages. So बहुत ही जरूरी है ये चीज समझना कि हम लोग कितना ज्यादा परेशान हैं जिन चीजों से. उनके लिए primarily what we do or go to generally is medicine. So we talk about allopathy, some people go to Ayurveda, some people go to homeopath and so on. But when we talk about medicine, we are talking about some kind of an external trigger which is not always natural. So can there be something natural? Because body is all natural, constituted by everything which is God given if you believe in God, or nature given if you believe in nature, but it is all natural at the end of the day. So can there be a natural methodology to overcome chronic conditions which you have been suffering from? With this, I'll give you a little bit of a background about yellow squash. आप सभी लोगों ने येलो स्क्वाश का एड देखा होगा, जिसको देखकर आप लोग यहाँ पर आए हो. So yellow squash is a platform which brings to you holistic wellness group programs, group wellness programs. Our job is to ensure that we bring to you the programs by experts who have been thoroughly verified. हम लोगों के 16-17 चेक्स होते हैं जिसकी बेसिस पे we identify which program and which expert to work with and what methodology the program should be, so that you are the patient or the participant is benefited to the maximum degree. We have three specific things that we do. Point number one, we identify the right expert with the right program who can benefit the maximum. तो हम efficacy देखते हैं, पुराना track record देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं. Point number two, we suggest the patient which program is ideally suited to them and why and how. You would be very well informed if you plan to join the program. Then you would be extremely well informed about what the program is and all the details that you need to know about the program, about the people, about anything and about everything. बहुत सारे लोग आप में से हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में से आए होंगे. जो व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है, आपके साथ में लिंक शेयर किया जाएगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, प्लीज डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. The third most important thing that we do is your well-being within the program. So whatever happens in the program, you're happy, you're dissatisfied, you're able to connect, you're not able to connect, etc. You can always reach back to us and we'll sort it out.
in any case, the experience within the program has been superlatively awesome. तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए। जो आप लोगों के लिए अभी पोल करा गया है, उस पोल में रिजल्ट्स आए हैं, मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। So 82% of us in this particular session which we are having right now, about 100 people. So 82% of the people are suffering from thyroid, and specifically we would be talking about what thyroid is, how thyroid conditions develop, and how we can overcome this successfully. So this is sir the 8th batch, I suppose. So we have had a number of batches. This will be the 9th. This would be the 9th batch. We already have had 8 very, very successful thyroid batches, and the results have been shared with a lot of people within our WhatsApp groups. तो आप लोगों के पास में वो टेस्टिमनीज भी रही होंगी, आप में से कई लोगों के साथ में, और वो सक्सेस स्टोरीज भी हैं। उन्हीं के कॉन्फिडेंस की बेसिस पे we have brought this wonderful program to you. And now I would shut up and we will begin the program. Over to you, Navneet ji. Can you stop the screen, please? Yeah. So screen is all yours. Okay, नमस्कार, वेलकम टू दिस वेबिनार। आप सभी का स्वागत है। आई होप सब लोग यहाँ इंग्लिश और हिंदी से फेमिलियर हैं, तो हम दोनों ही लैंग्वेजेस यूज करेंगे, दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखा कि 80% ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, वेदर वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो या ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये वेबिनार है। ये वेबिनार क्या है? ये एक इंट्रो वेबिनार है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ओके, जिसमें हम लोगों को तरीके सिखाते हैं हाउ टू यूज देयर ओन सिस्टम टू कम आउट ऑफ थायराइड कंडीशंस, ओके। काफी सारे लोग और भी चीजें मेंशन कर रहे थे, डायबिटीज एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स लाइक वेट एक्सेट्रा। So we will take care of all those questions and we will tell you how the program जो है वो हर चीज की, हर एक आपकी जो कंडीशन है थायराइड से रिलेटेड, उन सभी को कवर करता है, ओके। So before I start, 80% of the people over here are suffering from thyroid problems. Would you like to do something about it yourself in a very natural way? Give me a yes in the chat box. It is very nice to speak to people. And I know you are here, that's why, but it's very nice to have a chat with people. Okay, I will take a bit of your screen time and and share a bit of information with you. People who still can't hear me or are not, please make sure you are connected to call via internet or dial in, or sorry, call via internet or audio device. Okay, now this is the webinar, okay. Kumbhak therapy for thyroid, okay. How to overcome your dependence on medicine, की मेडिसिन से छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम टाइम बिताते हैं, we spend a little time to understand how medically it is seen. If you have high TSH and low T3 and T4, it is called primary hypothyroidism. Low TSH, low T3 and T4, it is referred to as secondary hypothyroidism or pituitary pathology. There is also a condition called thyroiditis, यानी autoimmune, when आपके खुद के सेल्स ही अपने थायराइड सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, ओके। अब आता है एक समझने वाली बात कि जो T3 है ये बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं वेट गेन में, इन ड्राई स्किन, हेयर लॉस, कई लोगों के रफ बाल हो जाते हैं। Some people face constipation, some people face bloating, fluid retention, थकान, fatigue, weakness through the day, mood swings for many people, and of course it also disturbs the menstrual cycle, the flow and the experience itself,
and therefore there are many other also what you call symptoms or conditions that are affected by it. Okay, now do you know one question to everyone, do you know why you are getting into this thyroid condition? क्या आपको मालूम है कि आपको थायराइड कंडीशन हुआ क्यों है? बिकॉज हम तो जब हमें प्रॉब्लम हुई हम डॉक्टर के पास गए तो हमें तो एक दवाई पकड़ा दी गई और बोला कि अब आपको ये पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी. There can be many reasons why you can get into these problems: liver dysfunction, hypothalamic inflammation, high levels of halogens, pituitary pathology, overnutrition of proteins, yes, overnutrition of proteins, adrenal fatigue, and many other known and unknown factors. तो ये बहुत सारे कारण हैं, पर क्वेश्चन ये है कि आपको मालूम है क्या? ओके, व्हाट इज द रियल रीजन फॉर यू? हमें वो तो मालूम नहीं है, हम सिर्फ T3, T4 और TSH के लेवल्स फिक्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये फिक्स होने से थायराइड खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है. ये जो लंबे समय से थायराइड के साथ रह चुके हैं, आप जरा उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे. ओके, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन तो दे दिया, और मजेदार चीज ये है कि इस मेडिसिन से क्रॉनिक एलिमेंट्स, चाहे वो थायराइड प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, एक भी व्यक्ति आज तक मेडिसिन खा के बाहर नहीं आ पाया है. सिर्फ कंट्रोल हो जाता है, मैनेज हो जाता है, पर कोई बाहर नहीं आ पाया है. और ऐसे में से बहुत सारे लोग हैं जो आज इस वेबिनार में आए हुए हैं ये जानने के लिए क्या इससे बाहर, इसके आगे भी कोई रास्ता है या नहीं है. ओके, जो लोग बड़े लंबे अरसे से मेडिसिन लेते हैं उनको मालूम है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. प्लस आने वाले समय में आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑर्गन क्रैशेज एंड ऑर्गन फेलियर्स, और जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, बिकॉज थायराइड एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफी सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं. ये मदर हार्मोन है. ओके, so therefore it is almost like sitting on a time bomb. Now what do we do? So here is a perspective, here is our perspective जो हमने ह्यूमन मैकेनिक्स को स्टडी करके, उसको ऑब्जर्व करके देखा है, that hypothyroidism is body's protective response to a threat. कि ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. ये कहाँ पे थ्रेट, कौन सी थ्रेट के लिए काम करता है? जैसे हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हुआ, हैलोजन प्रेजेंस हुआ, एड्रीनल ओवर एक्टिविटी हुई. और अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपका जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो वीक हो गया है. अब कोई चीज वीक हो जाती है, सपोज करो मेरी लेग्स वीक हो जाती हैं, तो मेरे पास क्या उपाय है? दवाई खाने से क्या वो ठीक हो जाएंगी? खाना खाने से क्या सिर्फ वो ठीक हो जाएंगी? हाँ, उसको सपोर्ट मिलेगा, बट मुझे अपनी टांगों पर काम करना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर पाऊं. मुझे उससे दोबारा उसी स्टेज पे ले जाना पड़ेगा, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन. हमने आपको बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज मैकेनिज्म वीक हो गया है. अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं नेचुरल ट्रिगर से. नेचुरल ट्रिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम बहुत सारे ट्रिगर्स इस्तेमाल करते हैं वो अननेचुरल हैं, वो हमारे लिए बने ही नहीं है. ओके, सो ये नेचुरल ट्रिगर क्या है? ये नेचुरल ट्रिगर है कुंभक. आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा, इंटरनेट पे कुछ हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी. तो इसके बारे में हमें बताएंगे राजीव रंजन, हु इज अ रेयर कुंभक योगी. इन्होंने अपनी लाइफ कुंभक को रिवाइव करने में लगाई है, और as an individual he has helped many cancer patients, people who are going in for kidney transplant, and other things like arthritis, asthma, diabetes, heart, etc. So I will stop the share over here and I will hand over the screen to Rajiv. Just give me a moment, please. Just wait, Rajiv. Am I audible? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? So हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम, और हाइपर, इवन हाइपर, हम लोग यहाँ पे दोनों ही कंडीशन, हाइपो, हाइपर एंड अदर, हाशिमोतो, इन सबको हैंडल करेंगे. विल हैंडल ऑल दिस. एनीबडी हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? कोई ऐसा है जो हिंदी नहीं समझ सकता? बिल्कुल.
कोई ऐसा है जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझ सकता? एनीबडी हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? ओके, राइट, सो आई विल स्विच बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, यू विल हैव टू कैच मी, मुझे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? So be a little focused because I'm going to tell you something which you will not read otherwise anywhere else. कहीं आप पढ़ नहीं सकेंगे ये सब चीजें, है ना, जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। You need to give a little थोड़ा थोड़ा हिंदी okay, so just focus a little bit, थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो whatever I will say, जो भी मैं कहूंगा उसको यही प्रूव करूंगा मैं, ठीक है ना? आप हर चीज लॉजिकल करना चाहते हैं ना, तो मैं आपके लॉजिक को एड्रेस कर रहा हूँ पूरी तरीके से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द एंड। आखिर में, इस वेबिनार के आखिर में क्वेश्चन आंसर पार्ट होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे, विल आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना? तो अपने क्वेश्चन अपने साथ में संभाल के रखिए। Now, first of all, how I will go about doing it, मैं कैसे ये वेबिनार में क्या क्या करूंगा मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से, विथ वेरी सिंपल एग्जांपल्स, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थायराइड प्रॉब्लम और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा। ऑल्सो we will do little experiments, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको भी पता चले। तो let's start. So I'm using one example. Let me give you one example. एक एग्जांपल देता हूं मैं और उसके साथ में थायराइड को एसोसिएट करते हैं। Let's associate thyroid with that. Suppose you have a vehicle, एक गाड़ी है आपके पास में, and उसका फ्यूल बहुत जल्दी कम हो रहा है, उसका जो पेट्रोल डीजल जो भी है बहुत जल्दी कम हो जाता है। हाँ, तो आप देखते हैं बार बार इंडिकेटर जो है वो बताता है कम हो गया। यू फिल इन फ्यूल एंड इट गोज डाउन। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कोई इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, तो एक महानुभाव आपको सजेस्ट करते हैं, somebody suggest you, फिल कर दो, बार बार फिल कर दो, खत्म होता है तो बार बार भर दो। तो क्या वो रियली सोल्यूशन है? बार बार भरना क्या सच में सोल्यूशन है? इज इट रियल सोल्यूशन? इज इट राइट सोल्यूशन? आपको इंजन को ठीक करना चाहिए ना। तो आप डॉक्टर के पास गए, लैब में चेक हुआ, T3, T4, TSH कुछ गड़बड़ है, तो फ्यूल कुछ गड़बड़ है आपका। तो डॉक्टर कहता है लो, रोज सुबह खाली पेट एक गोली। ये अच्छा सोल्यूशन है क्या? इज दिस द राइट सोल्यूशन? आप कोरिलेट करो। बार बार फ्यूल कहता है रोज भर दो, कोई बात नहीं, कम हो गया रोज डाल दो ना, है ना, जल्दी कम हो रहा है जल्दी जल्दी डाल दो। तो जो आप खा रहे हैं व्हाट इज दैट? T4 है ना, वो सिंथेटिक T4 है। थायरक्सिन, थायरोनॉम जो भी आप खाते हैं, इट इज सिंथेटिक T4, है ना, फैक्ट्री में बनाया हुआ T4 है। T4 से T3 बन जाता है, T3 आपके बॉडी में यूज होता है, लिवर में T4 T3 में कन्वर्ट होता है। ऐसा TSH बढ़ा हुआ है इसका, तो थायराइड के साथ में जरूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप, वो कुछ और ही है। तो सबसे पहले आपको समझना है वॉट एवर सोल्यूशन यू आर यूजिंग, इज दैट रियली सोल्यूशन? वो सोल्यूशन है भी कि नहीं है? तो इंजन खराब हुआ, इंजन तो ठीक करना आता ही नहीं, इंजन में गड़बड़ी है, समथिंग रॉन्ग विद द इंजन, यू डोंट इवन नो हाउ टू फिक्स द इंजन और नोबडी नोस। तो सोल्यूशन आपको क्या दे रहे हैं? फ्यूल बार बार डाल दीजिए। नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो वी विल एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझेंगे ये एग्जैक्टली क्या है थायराइड की प्रॉब्लम और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, आपने सुना तो होगा कम से कम, आपके डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इन योर डाइट व्हाट आर ऑल थिंग्स दैट इज नीडेड? 2-3 चीज है, 3 थिंग्स यू नो, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसा कुछ सुना होगा, राइट? एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड, सुना होगा कम से कम। क्या होता है प्रोटीन? वोटीन क्या स्ट्रक्चर किसी को मालूम थोड़े ही। नाउ आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट कि एग्जैक्टली कैसे है।
इफ यू वुड हैव बीन लिविंग इन अ जंगल, अगर आप जंगल में रह रहे होते तो आप क्या खाते? घास खाते या फल खाते? वुड यू ईट स्ट्रॉज, लीव्स, स्टेम और फ्रूट? क्या खाएंगे आप? आपके पास दो ही ऑप्शन है खाने के, देयर आर ओनली टू ऑप्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल द लीफ, स्ट्रॉ, है ना, लकड़ी, पत्ते। आप तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खा पाएंगे और तो कुछ नहीं खा पाएंगे। यू विल नॉट पुल अप ग्रास एंड स्टार्ट ईटिंग इट। पत्ते निचोड़ तोड़ के आप खाना शुरू नहीं करेंगे। तो यहां पे समझिए, फ्रूट्स में प्रोटीन कम होता है, ग्रासेस, लीफ में प्रोटीन ज्यादा होता है। अब आप समझिए, तो हमारी लाइफ, ये लाइफ कैसी लाइफ है? ये प्रोटीन कम चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। ह्यूमन बॉडी, द डिजाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट खाने वाला लाइफ है, प्रोटीन कम चाहिए। लेकिन प्रोटीन चाहिए क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को भी आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। सो यू नीड प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होता है, यू यूज कार्बोहाइड्रेट मोर, बट यू ऑल्सो नीड प्रोटीन, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इवन कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। कार्बोहाइड्रेट भी आपके अंदर हजम नहीं होगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रोटीन को आप मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, आप हजम ही नहीं कर पा रहे। थायराइड की प्रॉब्लम, व्हाट इज थायराइड प्रॉब्लम? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। ठीक है, पकड़ते हैं इसको। अब आगे लेट अस कोरिलेट विद योर सिम्टम्स। इससे क्या होता है एंड योर सिम्टम्स, व्हाट हैपेंस विद दिस एंड योर सिम्टम्स। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स, हार्मोन, हार्मोन सुना होगा, हार्मोन, एंजाइम, स्टीरॉइड, ऐसा सुना होगा आपने। ये सब हमारे बॉडी में होता है। These are all things that happen in the body. You have hormones, enzymes, steroids, ये सब हमारे बॉडी में होता है। These are all protein. तो डाइजेशन happens, डाइजेशन होने के लिए भी, सपोज करो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, या मेटाबॉलिज्म कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इंसुलिन चाहिए ना। There are many people who are suffering from type 1, type 2 here, है ना, type 1, type 2 से सफर कर रहे हैं, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। व्हाट इज इंसुलिन? हार्मोन। सिमिलरली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हार्मोन इन द बॉडी, हंड्रेड्स ऑफ हार्मोन। सपोज कीजिए आप प्रोटीन, यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन, सो योर हार्मोन प्रोडक्शन एंड एंजाइम प्रोडक्शन विल गेट हैम्पर्ड। हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से, एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से। हाँ, फैट को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो आपके बॉडी में प्रोटीन ठीक से नहीं है, इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों को डायबिटीज भी हो गया उसके बाद, इजंट इट? बिकॉज इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होगा, तो कई लोग मोटे हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा फैट, क्योंकि उसको ले कौन जाएगा? कैरियर कौन है? What is the carrier for fat and metabolism and carbohydrate? Protein. So once you suffer from hypothyroidism हुआ, once you suffer from hypothyroidism or thyroid problem, suddenly carbohydrate problem, fat problem, दोनों चीज आ गए। तो आपका ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है। अब कोई चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं हो रहा, आप प्रोटीन हजम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कुछ लोग मोटे हो गए हैं बिकॉज फैट ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, इसीलिए डायबिटीज हो गई। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। देयर आर टू थिंग्स व्हिच गेट ट्रांसपोर्टेड इन योर बॉडी, दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, दो ट्रांसपोर्ट होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड ट्रांसपोर्ट, इस सॉलिड का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी, सॉलिड चीज नहीं जा पा रही, कॉन्स्टिपेशन आएगा। कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? हाउ मेनी पीपल फेसिंग कॉन्स्टिपेशन? थायराइड से कॉन्स्टिपेशन, ना कोरिलेट,
ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑल द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, मेंस्ट्रुअल इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, हार्मोन बन ही नहीं पा रहा ठीक से, इट इज नॉट गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रॉपर्ली एंड नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एक जगह इकट्ठा होगा, इट विल गेट डिपॉजिटेड एट वन प्लेस, तो वाटर रिटेंशन और ड्राइनेस। हाउ मेनी पीपल फेसिंग ड्राइनेस, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, पेड़ की जड़ में पानी डालें ही नहीं, डोंट पुट वाटर इन द रूट्स, व्हाट विल हैपन, इट विल गेट ड्राइड अप, सूखेगा, क्रैक्स आ जाएंगे ना मिट्टी में, सूखने पे क्रैक्स आ जाते हैं, द ट्री विल फॉल, हेयर गिर जाएगा। दूसरा, हेयर में, बालों में स्टेम सेल्स होते हैं, शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल्स आर देयर इन हेयर फॉलिकल्स, उसको प्रोटीन मिल नहीं पाएगा तो कैसे बनेगा, हाउ विल इट ग्रो, जस्ट कोरिलेट करते जाएं, मैं बताता जा रहा हूं एक आपकी प्रॉब्लम को, कैसे ये आपकी प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाउ इट इज पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम, राइट। तो ड्राई पफी स्किन, ड्राइनेस इन द स्किन, वाटर ट्रांसपोर्ट नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, पानी का इधर से उधर जाना नहीं हो पा रहा है। नाउ अब और इंपॉर्टेंट चीज, इफ हार्मोन्स डजंट, हार्मोन लेवल ठीक से नहीं होंगे आपके बॉडी में, हार्मोन लेवल्स इज नॉट फाइन, व्हाट विल हैपन, हार्मोनल फ्लक्स चेंज, इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये आपके माइंड को असर करेगा, इट इंपैक्ट्स द नर्वस सिस्टम। दो चीजें कोरिलेट करते हैं, दो चीजें कोरिलेट टू थिंग्स, वन, फ्लो नॉट प्रॉपर, ट्रांसपोर्ट, एनी फ्लो नॉट प्रॉपर, कोई भी फ्लो प्रॉपर नहीं है बॉडी में, तो नर्वस सिस्टम कैसे, सेंस कैसे करते हैं आप, जैसे टच किया वो सेंस कैसे होता है, इट फ्लोज थ्रू नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम में फ्लो होता है, उसका फ्लो सही नहीं है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इश्यू, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, so there will be tendency of depression, anxiety, ठीक है। अच्छा, just tell me one thing, अब एक आखिर चीज बता रहा हूं, उसके बाद we'll go forward। हाँ, सपोज करो देयर इज अ हार्ट अटैक हैपन, हार्ट स्टॉप, किसी का हार्ट अटैक आपने अपने सामने देखा, हार्ट अटैक हैपन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन नीड, पहली चीज क्या चाहिए उस इंसान को, इमीडिएटली, अर्जेंटली, आप हार्ट को पंप करवाएं, यू मेक द हार्ट पंप, है ना, मुंह में हवा डालें, पुश एयर इन द माउथ एंड, और हाथों से हार्ट को पंप करवाएं, यही चाहिए ना, प्रेशर चाहिए ना, हार्ट को प्रेशर चाहिए टू फंक्शन। नाउ कोरिलेट हार्ट बीट विथ प्रेशर इन योर बॉडी, आपके बॉडी में भी ये प्रॉपर प्रेशर बना के रखा है, इट क्रिएट्स द प्रेशर ग्रेडियंट इन योर बॉडी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, हाउ ट्रांसपोर्ट हैपन्स इन द बॉडी, इन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट में ट्रांसपोर्ट होता, बारिश कहां पे कितनी हुई है, कैसे होगा, लो प्रेशर होगा, तो फ्रॉम क्लाउड फ्रॉम हाई प्रेशर कम्स टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट में कोई चीज मूव करती है, चलती है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बॉडी में ठीक नहीं बन पा रहा, ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, योर हार्ट विल ट्राई टू पंप मोर टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन हैपन, आपका हार्ट ज्यादा बीट करेगा ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। कितने लोगों को हो रहा है पैल्पिटेशन, हाई हार्ट बीट, मोर हार्ट बीट, हाँ, कितने लोगों को हो रहा है ब्रैडिकार्डिया, सडनली हार्ट स्टार्ट पंपिंग और हार्ट बीट्स इंक्रीजेस, कितने लोगों को हो रहा ना। सो correlate what I am saying with your symptom, यही these are all symptoms you are facing, and this has come from where, कहां से आया ये, आप प्रोटीन हजम नहीं कर पा रहे, मेटाबॉलिज्म प्रोटीन has gone down, प्रोटीन आप हजम नहीं कर पा रहे, दिस इज थायराइड प्रॉब्लम, दिस इज थायराइड प्रॉब्लम। सो
व्हाट इज द सोल्यूशन, लेट्स कम टू व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है ना, क्योंकि बातें कितना भी कर लो, है ना, सी ऑल दोस मेडिकल साइंटिस्ट एंड मेडिकल मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, समझ में भी नहीं आता। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज गॉट क्योर्ड फ्रॉम थायराइड, आज तक तो नहीं हुआ, इट हैज नॉट हैपेंड। तो बातों से कुछ नहीं होने वाला, we'll have to find a solution to it, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। so, कोई चीज वीक हो जाती है, जस्ट मेरी बात है ना, बहुत एक बच्चे जैसे दिमाग से समझें, फ्रॉम अ चाइल्ड्स माइंड, इफ एनीथिंग गोज वीक इन योर सिस्टम, कोई चीज कमजोर हो गई आपके शरीर में, क्या उपाय है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसका निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसको स्ट्रांग करें। और कोई सॉल्यूशन है? स्ट्रांग, मेक क्रिएट स्ट्रेंथ इन दैट एरिया। सपोज वन लेग बिकम्स वीक इन योर बॉडी, आपके शरीर में एक पांव कमजोर हो गया ना, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यूज स्ट्रेचर और स्ट्रेचेस, जो क्या कहते हैं उसको, बैसाखी इस्तेमाल करने से क्या ठीक हो जाएगा? और यूज अ व्हील चेयर। इफ योर लेग बिकम्स वीक, व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन? बैसाखी, स्ट्रेचेस और व्हील चेयर इज अ सपोर्ट, कुछ समय के लिए सपोर्ट ठीक है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? टू स्ट्रेंथन द लेग, आपको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा ना लेग में, है ना, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। तो समथिंग गॉन वीक, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म गॉन वीक, और इस तरीके से भी समझे, योर थायराइड हैज बिकम वीक, ऐसा भी समझ सकते हैं। सो समथिंग हैज गॉन वीक इन योर सिस्टम, व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्ट्रेंथन दैट एस्पेक्ट, उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब आते हैं, लेट्स लुक एट द बॉडी, इस शरीर को समझने की कोशिश करें। What is the strength creating mechanism of this body? मानव ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रेंथ कैसे ये शरीर क्रिएट करता है? ठीक है, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। प्लीज ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर ऑफ, तो हमें पता नहीं चलेगा, बिकॉज ओनली व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट यू विल बी एबल टू रियलाइज। आप मेरे साथ में अगर करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा, सडन रियलाइजेशन होगा, अच्छा ये ऐसा है, ठीक है ना। तो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट, करते हैं साथ में, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखें, कीप योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, मेक फिस्ट ऑन द राइट हैंड, दाएं हाथ से मुट्ठी बांधे, एंड ट्राई टू पुश एज हार्ड एज पॉसिबल, जितना जोर लगा सकते हैं पुश करें, करके देखें तभी पता चलेगा। पुश इट हार्ड पुश करें। हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस स्ट्रेंथ? कैसे ये स्ट्रेंथ बना रहे हैं? ये पुश करने का, ये जोर लगाना कैसे लगा रहे हैं? बोलेंगे मसल्स, बोन्स, दिस एंड दैट। नाउ अगेन मेरी बात सुनिए, जस्ट लिसन टू मी, अगेन डू इट। अब जो मैं बोल रहा हूं, वॉट एवर आई एम सेइंग, जस्ट फोकस देयर, वहां पे फोकस करेंगे। कम ऑन, लेट्स डू इट अगेन, वहां फोकस करेंगे। जितना पुश करें हार्ड, जितना हार्ड आप पुश करना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है आपको। द मोर यू वांट टू पुश, द मोर यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकनी पड़ती है आपको। विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैनॉट क्रिएट स्ट्रेंथ। हाउ डू यू लिफ्ट वेट? कोई वेट कैसे उठाते हैं? हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे उठाते हैं? सांस रोके बगैर वेट नहीं उठा सकते आप। यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। पीपल हु गो टू जिम में जाते हैं ना, वेट उठा के, दे बिल्ड मसल्स, सो दे वेट इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू होल्ड द ब्रेथ। वेट तो केवल एक बहाना है सांस रोकने के लिए। वो सांस रोक के अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वेट उठा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट मसल्स पे बाहरी तौर पे ज्यादा आ रहा है, बॉडी के बाहरी हिस्से में उसका असर आ रहा है। हाउ डू यू पुश समबडी? धक्का कैसे देंगे किसी को? यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। थोड़ी सांस रोकनी पड़ती है, ज्यादा धक्का देंगे तब पता चलेगा आपको। इन अ लिटिल पुश यू डोंट रिकॉग्नाइज, आपको समझ नहीं आता। थोड़ा ज्यादा पुश करके देखिए तब पता चलेगा सांस रोकनी पड़ती है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। पुल कैसे करेंगे? खींचेंगे कैसे किसी को?
by holding your breath. अगर आपके पाँव में तकलीफ है, if you have discomfort or weak knees, घुटने कमजोर हैं, even if you have to get up from a chair, चेयर से उठना भी पड़ता है, what happens? You make a sound, आपको एक आवाज करनी पड़ती है ना, क्या किया आपने? You held your breath, सांस रोक ली. You get up in the morning, सुबह सुबह उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं. You yawn and tense your body, अंगड़ाई लेते हैं. क्या करते हैं? You hold your breath, देखिए रोक लिया आपने पीछे और टाइट किया बॉडी को. तो सांस रोक के आप कोई भी काम करते हैं. जॉगिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, है ना, तेज चलना, जॉगिंग करना, जुम्बा, योगा, कोई भी काम करेंगे, यू होल्ड योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात में सांस रोकनी पड़ती है आपको. सो योर बॉडी इज स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म. आपके शरीर में मजबूती क्रिएट करने का तरीका क्या है, या स्ट्रेंथ क्रिएट करने का तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड, सांस को रोकना पड़ता है. क्या सांस को एक जगह डायरेक्शन दिया जा सकता है सांस रोक के? हाँ, जैसे मैंने बताया, लाइक आई टोल्ड यू, जिमिंग, व्हेन यू गो फॉर जिम, यू यूज वेट, वेट को इस्तेमाल करते हैं सांस रोक के उसको मसल की तरफ डायरेक्ट करने के लिए. यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स मसल. अच्छा, कितने लोगों का राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है? हाउ मेनी पीपल हैव राइट हैंड स्ट्रॉन्ग? हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग? कितने लोगों का बायां हाथ स्ट्रॉन्ग है? कैसे किया आपने? हाउ डिड यू डू इट? बचपन से तो नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ऐसा कुछ नहीं है दिस स्ट्रॉन्ग और दैट स्ट्रॉन्ग. यू यूज वन हैंड, आपने एक हाथ इस्तेमाल किया ज्यादा, और पीछे क्या हुआ उसको इस्तेमाल करते टाइम पे? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड, अलग अलग अनुपात में सांस रुकी और एक हाथ स्ट्रॉन्ग हो गया. कैन वी, सो है ना, एक तरफ डायरेक्शन दिया हमने, एक तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, मसल की तरफ डायरेक्ट करते हैं जिम में. सो कैन वी डायरेक्ट इट टुवर्ड्स थायराइड? क्या हम इसको थायराइड की तरफ में डायरेक्शन दे सकते हैं? कैन वी डायरेक्ट इट टुवर्ड्स लिवर? कैन वी डायरेक्ट इट टुवर्ड्स किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम? कर सकते हैं ना. ये कुंभक थेरेपी है. दिस इज कुंभक थेरेपी. सो वी यूज ब्रेथ होल्ड, सांस रोक के इसको डायरेक्शन देना एक पर्टिकुलर ऑर्गन और मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और एनी अदर मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी, एनी ऑर्गन, उस तरफ में हम डायरेक्शन देते हैं ब्रेथ होल्ड को. वी गिव अ डायरेक्शन टू दिस ब्रेथ होल्ड. दिस इज कुंभक थेरेपी विच वी टीच इन आवर क्लासेस. हम अपने क्लासेस में ये सिखाते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू क्यों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक हो गया. व्हाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म गॉट वीकेंड इन योर सिस्टम, व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज पहले ही समझिए, यू हैव डिफरेंट कैपेसिटीज. अलग अलग इंसान में अलग अलग कैपेसिटी होती हैं, कोई एक कैपेसिटी वीक होने के कारण होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होती हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने देखा होगा अपने परिवार में, इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, देयर आर पीपल who eat less and there are people who eat more. आपके परिवार में, आसपास में, जानकारी में, कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं. There are people who eat more but still are thin. खाते बहुत ज्यादा हैं और हैं बहुत, ऐसे कुछ मोटे नहीं है. So what is the difference? क्या फर्क है? इनटेक कैपेसिटी अलग 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 लेने की कैपेसिटी है. तो इनटेक कैपेसिटी जैसे ही हमारे शरीर में देयर आर 84 कैपेसिटीज, अलग अलग 84 क्षमताएं हैं अपने शरीर में. तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपके अंदर कौन सी क्षमता वीक हो गई? इन यू पर्टिकुलरली विच कैपेसिटी हैज गॉन वीक, फॉर बिकॉज ऑफ विच प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हैज वीकेंड. कौन सी कैपेसिटी कमजोर हो गई, कौन सी क्षमता कमजोर हो गई जिससे थायराइड की प्रॉब्लम आई है? ये कैपेसिटी का पता हम लगाते हैं. तो वी डू अ डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस करते हैं. ये दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है, वर्ल्ड्स ओनली डायग्नोसिस which finds out different capacities. आपके अंदर क्षमताओं का पता लगाता है, कौन सी क्षमता कमजोर हो गई है. दिस इज कॉल्ड एज प्राण शक्ति डायग्नोसिस. दिस इज व्हाट वी डू, ये हम करते हैं. देन उसके बाद हम आपके लिए एक कुंभक का मॉड्यूल डिजाइन करते हैं. योर कुंभक मॉड्यूल गेट्स डिजाइन्ड which increases that capacity. वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उस कैपेसिटी का.
So this is a customized program. हर एक को अलग तरीका मिलेगा उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो पहले क्लास में जब आएंगे तो विल टीच यू कुंभक, बेसिक कुंभक मॉड्यूल, देन एडवांस, उसके बाद कस्टमाइजेशन, चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से। तो ये प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं इस तरीके से। एक चीज आपको दिमाग में आ रही है, कुंभक कैसे करते हैं। तो आप प्रोग्राम का कुंभक तो आपको नहीं सीखा, वी कांट टीच दैट कुंभक टू यू बिकॉज दैट इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू ईच पर्सन। वो हर एक इंसान के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। एक जेनरिक मैं आपको सिखाता हूँ तो ताकि आपको पता चले कि हम कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, एक जेनरिक, एनीबडी हु हैज लोअर बैक पेन और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम किसी को है और लोअर बैक पेन है, हाँ, तो अगर स्लिप डिस्क वाला बंदा उठ नहीं पा रहा, पर्सन इज नॉट एबल टू गेट अप एंड वॉक प्रॉपर्ली, अगर ये चीज करेगा तो वो चलने लग जाएगा। देखिए ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हम डायग्नोसिस नहीं कर रहे उस बंदे का, क्या प्रॉब्लम है, रूट नहीं पता कर रहे। सो इट इज अ जेनरिक मेथड, एक सबके लिए कॉमन सा मेथड है। ठीक है, करते हैं वो। तो कैसे करेंगे, आई विल टेल यू द मेथड फर्स्ट, मैं आपको मेथड बताऊंगा, सेकेंड में मेरे साथ में करेंगे, थर्ड आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो मैं मेथड बता रहा हूं। आपको एक मुद्रा बनानी है, अंगूठा ऊपर की ऐसे नीचे की ओर रखना, मुट्ठी बांध के घुटनों पे रखना, कीप द थंब ऑन योर नीज। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू इनहेल अ लिटिल फास्ट, थोड़ा तेजी से सांस भरना है, 3 बारी लगातार, 3 बार लगातार थोड़ा तेजी से भरना है, रोक लेना, उसके बाद रोक के करना, जस्ट होल्ड इट एंड देन टेंस द लोअर बैक, जो कमर का हिस्सा है और आगे पेट का हिस्सा, निचला पेट का हिस्सा, उसको टाइट करना है, लूज करना है। टेंस द लोअर बैक एंड लूजन इट, टेंस इट, लूज इट। सांस रोक के रखनी है, जितना कर सकेंगे आराम से उतना करेंगे एंड देन स्लोली एक्सेल, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देंगे। साथ में करें, लेट्स डू टुगेदर। अंगूठा नीचे, घुटनों पे, कीप द थंब ऑन द नीज, 3 बारी थोड़ा तेजी से सांस भरेंगे। हाँ, रोक लेंगे, होल्ड। अब कमर को टाइट करें, ढीला करें, टाइट करें, ढीला करें, टाइट करें, टेंस योर लोअर बैक एंड रिलैक्स, टेंस इट एंड रिलैक्स। ये करते जाएं जितना आप आराम से कर सकते हैं। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना आप आराम से करें। उसके बाद देन स्लोली एक्सेल, वट एवर योर कैपेसिटी, जितना भी होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। टाइट करना, ढीला करना, टाइट करना, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। एंड वट एवर टाइम यू कैन होल्ड, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेल एंड रिलैक्स। जितना भी आप कर सकते हैं उतना करके सांस छोड़ के रिलैक्स करें। एक बार किया है सामने, कैन यू डू once on your own, एक बारी अपने आप करें, ऐसा करके देखें। thumbs down on the knees, घुटनों पे ऐसे रखें, घुटनों पे टिकाएं उसको, है ना, घुटनों पे रख लेना। ऐसे करके घुटनों पे रखना, बस सिंपल। कीप द थंब ऑन द नी, राइट। 3 बारी, इनहेल 3 टाइम्स, अ लिटिल फास्ट, थोड़ा सा तेजी से इनहेल करें, रोक लें, होल्ड एंड देन टेंस योर लोअर बैक, कमर को टाइट करना, ढीला करना, टाइट करना, ढीला करना, जितना देर कर सके करेंगे। उसके बाद एक्सेल एंड रिलैक्स, हाँ, छोड़ के रिलैक्स करें। नाउ मिनिमम आपको ये 12 बार करना चाहिए, 12 टाइम्स, है ना। इन बिटवीन 2 राउंड्स गिव अ लिटिल गैप, थोड़ा बीच में रिलैक्स करें, फिर अगला करें, फिर अगला करें, ऐसे 12 टाइम्स करना चाहिए। बैक सपोर्ट नहीं लेंगे जब भी, पीछे टेक नहीं लगाएंगे जब भी करेंगे, है ना, टेक नहीं करना। इफ somebody is suffering from slip disc, कोई स्लिप डिस्क है अगर, तो 21 टाइम्स मिनिमम करना चाहिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। So any generic method for thyroid? No, thyroid problem doesn't happen on your thyroid only. आपका लिवर भी खराब हो सकता है, किसी का हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। Some people might be suffering from adrenal fatigue. तो थायराइड है कहाँ पर प्रॉब्लम, केवल थायराइड की है, हर एक को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती। So your T3, T4 levels and TSH levels are different because of different problems. इसीलिए कोई एक चीज नहीं है उसके लिए, राइट।
So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आगे फिर टीम बताएगी. थैंक यू राजीव. देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो लोगों ने अभी तक डाले हैं ग्रुप्स में, सॉरी चैट में. So now this program is for whom? This program is for people whose primary condition is thyroid related and they must be suffering from other related conditions, चाहे वो weight से related हो, sleep से related हो, digestion से related हो, nervous system से related हो, maybe anxiety और depression से related हो. कुछ लोगों को हो सकता है थायराइड के साथ साथ ब्लड प्रेशर या बीपी सॉरी या डायबिटीज भी हो रही हो. ओके, सो let me just take a quick screen time again and let me share some details about the program and then we can answer questions after that. Okay, so give me a moment and while I bring the screen, I'm still interested wanting to know people who are willing to work upon themselves. Okay, फॉर एग्जाम्पल हियर आर सम एग्जाम्पल. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. किसी ने पूछा क्या थायराइडिज्म रिवर्स हो सकता है, दवाई छूट सकती है? सो निधि जैन ऑफ लखनऊ, जिनको हाइपोथायराइडिज्म था, हाइपरटेंशन था, टैकीकार्डिया था, ये 6 महीने से दवाई से बाहर हैं. एकता चड्डा हु हैड hypothyroidism since the age of 26 and now she is in her 40s. She also got relief in migraine, bloating, weight loss, piles, and she's out of medicine for more than 5 months now. Okay. Similarly, RC Gupta ने अपना जो TSH है वो 1.5 महीने में कम किया और इनका मेडिसिन भी उसी समय कम हो गया था. इनके इसके अलावा इनको IBS, ब्लोटिंग, लो एनर्जी, प्रॉब्लम इन सिटिंग, बहुत सारा कुछ रहा था. निधि नागरथ की तो बीपी मेडिसिन खत्म हो गई है. थायराइड मेडिसिन इज नाउ रिड्यूस्ड टू नॉट 50% बट एक्चुअली 25%. एंड बाय हुम? बाय द डॉक्टर देमसेल्व्स. सो अदर पार्टिसिपेंट्स जो हैं प्रोग्राम में, व्हाट डू दे रिपोर्ट? वेट लॉस, वेट जो जिनको वेट ज्यादा है, lower readings, reduced bloating, reduced medicine, higher energy levels. Okay, so how many of you are interested in knowing more about the program? Give me a yes, give me a yes. Okay, because the program objective is to come out of medicine completely. आपको दवाई से पूरी तरह बाहर आना है. कैसे? with customized कुंभक मॉड्यूल. ओके, और ये कुंभक मॉड्यूल कैसे कस्टमाइज होता है वो आपको बताया गया अभी प्राण शक्ति डायग्नोसिस द्वारा. कुंभक क्या करने में मुश्किल है? नहीं, आप कुंभक कहीं भी कर सकते हैं. आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कंफर्टेबल लगे. इसमें कोई डाइट प्लान, कोई एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ब्रेथ होल्ड मेथड्स इन्वॉल्व हैं. क्योंकि ये आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आते हैं या मोर एफिशिएंटली आते हैं. What is the duration of the program? The duration of the program is 3 months. Okay. How many classes? 6 classes. So पहले 3 हफ्ते में 3 क्लास होंगी. एक क्लास होगी हर हफ्ते. एक क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे होता है. पहली क्लास में आपको सभी को जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जनरल कुंभक सिखाया जाता है. दूसरी क्लास में उसका एडवांस लेवल सिखाया जाता है और तीसरी क्लास में कस्टमाइजेशन हो जाता है बेस्ड ऑन योर प्राण शक्ति डायग्नोसिस, which is again an online form that you have to fill up. It is not a medical diagnosis. It is about the Prana Shakti in your system. Or throughout the classes, you will get WhatsApp support, phone call support, video support. जो भी क्लास का मटेरियल होता है, जो भी क्लास का इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सभी के साथ शेयर की जाती हैं थ्रू WhatsApp, थ्रू ईमेल. ओके, इस प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया कोई डाइट प्लान नहीं है, डाइट पर्सपेक्टिव होगा. हम आपको सिर्फ बताएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या ठीक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या खाना है. मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग भी होगी. एट होम सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस होंगे बिकॉज ये बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेस टू ऑल क्लास वीडियोस एंड ऑफ कोर्स टाइमली आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे जब आप क्लास में आ जाते हैं. I'll skip this part. So, कुंभक कितनी देर करना पड़ेगा दिन में? ये 30 मिनट का मॉड्यूल आप सीखते हैं. सुबह 20 मिनट आपको करने हैं, शाम को 10 मिनट करने होते हैं. शुरू में 20 मिनट से थोड़ा समय ज्यादा लगता है बिकॉज आपके लिए नई चीज होगी, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा उसको सीखने में, पर ये 2-4 दिन में सभी सीख जाते हैं.
मैं इसके बारे में बता चुका हूँ. So program, now here is the cost. Ayush, would you like to explain the cost and the early bird part of it? Yeah, thank you sir, thank you for a lovely session. सबसे पहले इसके कॉस्ट के I'll बारे stop the share. You can take over if you want. Yeah. Yeah, no problem. All right. So basically, the cost of the program is 10,000 rupees. But इस प्रोग्राम को हम आप लोगों के लिए और स्पेशली गिवन द कंडीशन दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू कोरोना, कोविड, economic situation, etc., we are giving a discount of 20% for all the webinar attendees. तो 8,000 रुपए की कीमत रहेगी. If you plan to buy this from the website, then KMB2K ये आपको कोड यूज करना है. That's all. If there would be all other methodologies which will be shared to you, पेमेंट लिंक आपको दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें दी जाएंगी. विल कम टू दैट. बट अगर आप आज रात में इसका पेमेंट करते हैं तो आपको केवल 7,000 रुपीज की फीस पड़ेगी. दैट इज एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट. अगेन द कूपन कोड फॉर द वेबसाइट फॉर दिस इज KMBEB अर्ली बर्ड. तो KMBEB आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट पे. वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट इज yellowsquash.in. तो yellowsquash.in पे आप कर सकते हैं. 25 नवंबर वेडनेसडे 7 बजे सुबह की क्लासेस रहेंगी. वेडनेसडे 7 बजे की क्लासेस रहेंगी. उस तरह से आप कर सकते हैं. यू कैन पे ऑन टू द बैंक. तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करी जाएंगी. अगर आप वॉलेट पेमेंट करते हैं तो 9717333655 दिस इज माय फोन नंबर और इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं. आई विल शेयर माय नंबर विद यू. गूगल पे या पेटीएम अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पे कर सकते हैं. कंपनी अकाउंट से लिंक्ड है ये. सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम टू यू वुड बी 7,000 रुपीज. तो अगर आप वॉलेट पेमेंट करते हैं तो 7,000 इज द अमाउंट दैट यू नीड टू पे. तो उस तरह से है. थोड़ा सा अगर आपको प्रोग्राम रिलेटेड जानकारी जानने की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है. और किसी और तरह का सवाल जवाब भी हो तो वो भी कर सकते हैं. मेनली वी वुड लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आपके सामने थोड़ा सा स्क्रीन रखा है थोड़े समय के लिए. तो इफ समबडी इज स्कैनिंग तो स्कैन करने के लिए QR कोड स्कैन करने के लिए आप स्क्रीन को यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू. तो इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट थ्रू स्कैनिंग देन गूगल पे और बैंक अकाउंट दोनों का QR कोड आपके पास में. यू कैन गो अहेड एंड मेक द पेमेंट लाइक दैट इफ यू वांट. बाकी प्रोग्राम के लिए या किसी और चीज के लिए जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं. छोटा सा पोल मैं करना चाहूंगा यहाँ पर टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर यू आर एज रिगार्ड्स दिस प्रोग्राम. आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करें, तो उन सारी चीजों के लिए इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन आंसर द पोल. सो आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पोल होएगा. तो अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो तो प्लीज हमें बताइए सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली. हम आपकी हेल्प कर पाए. किसी तरह के सवाल जवाब हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. अकॉर्डिंगली वी विल रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू अस. अभी केवल 10% लोगों ने जवाब दिए हैं अपने. तो लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आंसर दिस. जितना आप लोगों के जवाब आएंगे हमारे पास में अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू टेक इट अप. ठीक है. तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं. आप प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने सवाल पूछ सकते हैं. हम लोग चैट में से भी ऑब्वियसली सवाल लेंगे. तो फॉर टिल देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Sir, I'll pick up a few questions. Mital Doshi, I'll reach out to you separately. For fatty liver, digestive issues, acidity, this may not be the appropriate program. This is specifically for thyroid conditions. So we'll reach out to you.
hypothyroidism can cause If the person has a hypothyroidism and has fatty liver, etc., then they can come for the program in case they have that. Yeah, Mital, if thyroid is one of the contributing situations with you, then तो definitely this is an ideal thing. But अगर आपको केवल fatty liver digestive issues है तो this may not be the right one. Lena Parida, she has asked about a long message she has. TSH level 6.7, constipation, digestion problems, skin, hair. Doctor has prescribed penicillin injection every 15 days for a year. Can I get rid of this? Yes, you can. See, essentially, there is a systemic weakness which is causing all this. It might be, it is related to your thyroid problem. And so based on your diagnosis, we will give you a customized module, which will help you get rid of all this. Can Kumbhak help overweight? Yes. How many people would you like to meet who have lost weight because of Kumbhak? And this does not involve practices, etc. It does not involve exercise, sorry. So आप बैठे बैठे ही अपना weight, जिनको weight की problem है वो कम कर सकते हैं. Body अपने आप अपना weight कम करेगी. आप नहीं कम करेंगे, body अपने आप ही कम करेगी. Can you screen share please, so we can see more people? One question I had. Yeah. I'm Kamal here. I have signed up for the gut cleanse thing, Ayush. Yeah. Yeah. So then does this also help me? Because I have thyroid and I have all the thyroid issues, but I am already doing the gut and the cleansing program, which is starting on Tuesday. Yes, ma'am. So now, on your time what would you? They both go hand in hand. So Okay. specifically working on your gut, and this program would work on your holistic system from a different methodology. So so both can go hand in hand, ma'am. So they can both be done together? Yes. Oh, okay. Okay, then let me just take a call. And you are starting on the 25th? Yes, ma'am. 25th in the mornings. Okay. Okay. Weekly classes. Okay. Right. Can I'll talk to you a little later then? Yeah, sure, ma'am. You have my number. Please do call me. Yes, I will do that. Okay. See, people are asking, you know, thyroid plus this condition, thyroid plus whether is it because of this, is it because of that. Nothing happens in isolation in the human system. We must understand this. कोई भी चीज अपने आप अकेले में काम नहीं कर रही होती है. So thyroid itself can lead to problems, or problems can also lead to a thyroid problem. Okay, either ways आप अगर अपने सिस्टम पे काम करते हैं, if you make the function which has gone weak, if you strengthen this, then all the issues will naturally be taken care of by the body itself. Sangeeta is asking any generic method for hypothyroidism. We have already answered that thyroidism is not a generic condition. It impacts many aspects of your function and your life actually. So there cannot be a generic method for any of these. See, there are many things available on the internet or wherever where people do teach generic methods or generic processes. But the fact is, even if you do a generic method, you might get a little relief. You're not going to come out of it. Okay? So if people who are suffering from many problems, if they start even doing walking, they'll get relief, but they're not going to come out of it. Somebody asked, can somebody with BP problem do breath hold? देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप ब्रेथ होल्ड तो करते ही हैं दिन में. अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर आप कुछ फोकस करते हैं, तो आपका ब्रेथ होल्ड तो होता ही है. उस समय क्या आपका मतलब उसकी वजह से बीपी पे असर आता है? नहीं. So there are many programs which Yellow Squash and we run together. So whether in diabetes program or in thyroid program, people who have been suffering from BP, they have been able to leave their medicine.
Even people who had heart condition, okay, who had been taking medicine for let's say 10 years or whatever, their medicine is now reduced to once a week, even for people with triple condition. So how long will it take to generally cure of to permanently? Ma'am, see, the program is of 3 months. We cannot predict for everyone, but if you work upon yourself, you have a good chance of leaving your medicine and coming out of it in 3 months. However, having said that, some people will take longer. They will take longer because the system would be in a certain weakness. So therefore, उनको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा. Every system is different. Okay. There are few questions regarding, a combination of corona, COVID with thyroid. Okay, let me answer that. When you do Kumbhak, your immunity is any case built. We've had cases, including families who tested negative for, positive for COVID. Okay, I'll give you an example of one family. They are based in Udaipur, and the eldest member of the family, उनको जो है ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम हो रहे थे और उनके पास ऑक्सीजन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने जो एक कुंभक इम्यूनिटी मॉड्यूल है वो ही करते रहे, उससे उन्होंने अपने ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखे। 2 दिन बाद उनको वो ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिली। तो उनका कहना है ये कुंभक तो ऑलमोस्ट लाइक जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है हॉस्पिटल में लगाते हैं, ये तो वैसा ही निकला। सिमिलरली देयर आर अदर केसेस जो कुंभक करते रहे उस समय और 2-2, 3-3 दिन में वो इससे बाहर आ गए। दे टेस्टेड नेगेटिव विद नॉर्मल काउंट्स। ओके, हाउ मेनी क्लासेस वीकली? एवरी वीक देयर विल बी 1 क्लास। ओके, in the rest of the week you will do your practices. In case you have any issues in understanding the practices, we will help you with that. A lot of people are asking about our opinion on medicines, whether this medicine or that medicine. See, medicines are given by doctors. It is better you ask about medicines to them. Okay, we over here know Kumbhak and we know the human system. All we know is medicine, no matter what you take, at best can be a support, and most of the allopathic medicine, no matter what it is, in the long run it harms everyone. For emergencies, for accidents, allopathy is a fantastic tool. Okay, that is a fantastic tool, but anything which is taken in the long run is going to harm you. Sharmila actually had thyroid, but she's with medicine, or I don't know what she is doing, but she has been able to minimize and slowly eliminate. Yes, absolutely, ma'am. Absolutely. If you are first you had thyroid and then you came into diabetes, you can come for this program and it will be taken care of. Can I ask, elaborately so that, it gives me a clarity? Yeah. Basically, I had thyroid since last 5 years, 4 to 5 years. And then apparently in lockdown, because of lot of work, I reduced, 8 kg weight. Okay. And then I reduced my medication from 100 to 75, what I wrote here, 50, 25, 12. And my one of doctor homeopathy, she's my friend, so she gave me this homeopathy medicines. Okay. So now from last 15 days, completely I stopped to take the test and then again analyze where I stand in thyroid. So now the report, this antibody also done. Now that came 0.8. So now my thing is like whether this Kumbhak helps me for what I'm like actually, Yes. because I don't want Yes. to start medicines and Yes. also for my diabetes. Yeah, definitely it will help you for both. Okay. Is Ekta Chadha here? Okay, here? thank you. Yeah, sure. Is Ekta Chadha here? Yeah. Just I want to bring somebody who has benefited from doing Kumbhak in hypothyroidism condition. So Ekta, would you like to just share your experience with everyone? Okay. I've told them briefly, but I do not know whether they remember your history or not, but please share. Yeah. Hi everyone. See, मुझे 24 when I was 24 थायराइड हुआ था और तब से मैं मेडिसिन
आप म्यूट हो गए हैं. Yeah. एंड 100 mg मेडिसिन मेरी चल रही थी जो अभी 6 मंथ्स पहले बिल्कुल फिनिश, मतलब मेडिसिन आउट हो गई बिकॉज ऑफ कुंभक. 1 साल पहले, 1.25 साल पहले ज्वाइन किया था. एंड इनिशियली आई वाज नॉट डूइंग लाइक ऑन एंड ऑफ. हम लोग नहीं सीरियसली लेते हैं थायराइड इसको, कुंभक को. लेकिन जब मैंने सीरियसली किया तो मेरा एक्चुअली थायराइड की मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो गई. मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थी. माइग्रेन था मुझे, पाइल्स था मुझे, इवन ग्लूकोमा आल्सो डिटेक्टेड. ऐसा नहीं है, ये एक कुंभक करने से सारी प्रॉब्लम्स को उसने एड्रेस किया है. और मैंने कोई अलग अलग नहीं किए हैं, सिर्फ थायराइड का ही अटेंड किया था, क्लासेस ली थी. एंड टोटली लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल. मेडिसिन आउट हो गई हैं, फूड सप्लीमेंट्स जीरो. लाइक इतना एनर्जेटिक बना दिया कुंभक ने. लाइक क्या कहते हैं, मैं एमवे की डेली न्यूट्रीलाइट मेडिसिन लेती थी एनर्जी के लिए. आई हैड दैट मेडिसिन फॉर 3 months और अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं, कितने महीनों से. एंड डेली कुंभक, मॉर्निंग इवनिंग मॉड्यूल, चाहे कुछ भी हो जाए, खांसी हो, जुकाम खांसी, यस मेरे को इतना ज्यादा होता था. आफ्टर एवरी 2 months मैं उसकी प्रोन थी. लेकिन अभी 1.25 साल के बाद जाके मुझे जुकाम हुआ, अब जाके, और वो भी कुंभक से ठीक किया विद नो मेडिसिन. सो कुंभक ने पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरा एनर्जेटिक करता है, पूरा दिन के लिए आपको तैयार करता है. एंड हमारी अंदर से नेगेटिविटी को पूरा निकालता है, तो पूरा चेंज करता है ये कुंभक. थैंक यू. Thank you, Ekta. Navneet ji, can I ask you 1 or 2 questions? Yes, sure, ma'am. Yeah, see, the problem is that I've got thyroid since 33 years now, and Mhm. I have a lot of other issues, also health issues like BP and constipation, and Mhm. suddenly some skin issues have also come up. Mhm. But my main issue just now is blood pressure and my shortness of breath. Mhm. Like I'm having this shortness of breath, which is happening very often. So the Yeah, shortness of breath is related to what really? Is ma'am. it thyroid? See, okay, let's look at it slightly differently. You are not able to take in, your intake capacity has gone down. Okay. Yeah, I have to like Yeah. stop So taking now, some so that steps. is a weakness. So therefore, when something becomes weak, you have to increase this capacity. Okay. Because you're not able to even breathe in, the body is raising the BP and other parameters to manage itself. Okay. Okay, okay. That is the body's natural reaction. भाई अगर सपोज करो खाना अंदर कम नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा है, तो बॉडी को तो अपने आप को चलाना है ना. तो बॉडी का मेन फ्यूल होता है ग्लूकोज. ओके, बिसाइड्स अदर थिंग्स. सो बॉडी विल पंप इन ग्लूकोज and it will raise your BP. Okay. Okay, okay. Because it is not getting that strength from within. Okay. So now for you, Right. you have to, I mean, I've given you a very, very generalized answer over here. When we do your diagnosis, we Yeah. will know precisely why you're getting into this condition. Okay. And Okay, then, so we will have a diagnosis. yeah, see, diagnosis, it is not a medical diagnosis. It is what we call a Pran Shakti diagnosis. It will be a diagnosis about you. Okay. What you are as a system. Okay. Not what is there in your Okay. blood or what is there in your, saliva or whatever. But what, Right. how are you as a system? आपकी प्रकृति क्या है? Okay. Okay, okay, okay. So this, I should not be worried about the shortness of breath just now. Should I be worried about it? Is what I want. Ma'am, see, first of all, if you worry, it is going to increase. Okay. Right? Yeah, it's a vicious cycle. Right. So That's true. it will be very easy for me to say don't worry. Okay. But you'll say, bloody Ah. hell, you are not having that problem. I'm having that problem. You are asking me not to worry. So Yeah. I'll not say. So I'll say, please avoid. Don't get worried. If you think whatever we are talking over here makes sense, come to the program. Okay. Even people with asthma, they benefit immensely. Okay, and Right. the results are pretty good. So now it may take you a little time, but it is quite possible that irrespective of for how many years you had it, the years ahead are going to be much better. Okay. Okay. Yeah? Our old age should be the best age of our life, no?
Yes, absolutely. सब काम That's खत्म true. हो गया, सब चले गए, या तो तीर्थ यात्रा पे जाओ या लाइफ में खुशी मनाओ उस समय, नहीं? I So know being Kumbhak healthy should, is a yeah, it's not just about being healthy. See, yeah, health is not the absence of disease. Okay, yeah, everyone has disease. right. So, but you can be lively. So with Kumbhak, okay, here is I'm going to say very, very openly, you are going to recreate or regain your youthful self. Okay. So Wow. you may not be able to run as fast as a 15-year-old or a 25-year-old, but you can Right. be as lively as them. It is 100% possible. Okay. Thank you. Thank you. Ms. Dipali says, can hypothyroidism be cured only through Kumbhak? If you know any other way, please share with us. See, when we look at, everyone knows about medicine, how it works. Rajiv has spoken about it. When you do things like exercise, okay, or you take diet, these are support. These are support. Now you must realize that exercise works on the level of muscles and skeletal level, muscular skeletal level, okay, and it takes a long time for it to start impacting the organs and their strength and their functioning. In a curative manner. Similarly, diet is a nice support, but it is not curative. So how are we curing? How are we saying Kumbhak is the way only out? Because we are using the body's natural way of building strength. We are not using an external factor. So therefore, it is the only way to not just come out of hypothyroidism. It is the way to come out of diabetes. It is the way to come out of BP. It is the way to come out of arthritis. It is the way to come out of asthma. And it is the way to come out of even cancer. Yes, I'm putting my neck out over there. I'm announcing it to everyone that it is the only way to come out of cancer, to reverse cancer. Ms. Bhavna is asking, does hypothyroidism lead to lichen planus pigmentosus? See, we have explained in the beginning also. Both these things work both ways. Number two, once your mother hormone is not functioning well, so it is going to impact all functions of your body. Okay, all the hormonal functions of your body, and therefore it will come up in various ways. Usually, a lot of people having hypothyroidism don't take it seriously because ऑनेस्टली दर्द नहीं होता है. यहाँ पे जो कुछ सवाल आ रहे हैं वो उन्हीं लोगों के हैं जिनको दर्द हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में. दे आर रियली पेन्ड बाय इट. वी थिंक ठीक है चल जाएगा, बट एज यू प्रोग्रेस अलोंग it will bring more and more problems. Thyroid plus low platelets on steroids since 1 year, can I be cured? Yes, you can be cured. Once again, you have a systemic weakness, which is why you are having low platelets, or which is why they are putting you on steroids. Okay, so they are giving you artificial support for your system. Now, this artificial support is okay at one level, but we all know what steroids do. So they're going to impact your hormonal functions immensely. So you have to strengthen the system. You have to know why it is happening, and that can only happen with if you come to the program and you do get your diagnosis done in the program and do a Kumbhak for yourself. See, this program is meant for people who are willing to work upon themselves, okay, who are willing to commit to themselves, who are willing to work upon their wellness, because अभी तक हमने अपनी health या जीने का तरीका आउटसोर्स किया हुआ है कि कोई और आके ठीक करेगा, कोई और आके करेगा, पर ऐसा होता नहीं है. हम भी आपको ठीक नहीं करेंगे. कौन ठीक करेगा आपको? आप खुद ही ठीक करेंगे अपने आप को. हम आपको तरीका बताएंगे, हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे, और 3 महीने के बाद भी सपोर्ट करेंगे जब तक कि आपको सपोर्ट की जरूरत है. देयर इज this is also answering a question generally. Hypo plus PCOD. Yes, again they are related. Okay, so it will be taken care of. Right. You guys can unmute yourself and ask your question directly, please. So Anita Grover
mentioned, it's not just like pranayam. Do you want to add to that, sir, for people's benefit? Okay. A lot of people ask this question: is it like yoga? Is it like pranayam? Yoga, pranayam, the purpose is very, very different. Okay. The purpose of yoga is mukti, dissolution. Okay. You can do it in various manners, various ways, whether through bhakti yoga, through karma yoga, through jnana yoga, or through even kriya yoga. Okay. Pranayam essentially means directing your prana. Now tell me, what is not pranayama? When you eat food, aren't you directing it in a particular way? That is also pranayama. If you are using information, that is also pranayama. Now the pranayama that you are doing has a different purpose. Here, it is not breathing techniques. It is not breathing, system or techniques. It is breath hold patterns or breath hold techniques. So that is the essential difference. And purpose of Kumbhak, the way we are handling it over here, is therapy. It is not dissolution, it is not mukti. क्योंकि सबकी लाइफ के ऊपर से होल्ड खत्म हो गया है, तो हम तरीका सिखा रहे हैं. Kumbhak means hold. Okay, so your one life is hold, your body is a hold. If I expand it, even this universe is a hold. So it is one Kumbhak. So we are teaching people how to have a better hold on themselves and their lives. That is the difference between pranayama and Kumbhak. Certain yogic practices do use Kumbhak, okay, but there it is hardly used in a very, very regular manner, because Kumbhak means hold and yoga means let go. So Kumbhak is not really encouraged in yogic practices. Mr. Ram Sharma is asking, can it additionally help him in asthma? Absolutely, sir. Absolutely. We've had, in most of our programs, we actually get people with multiple issues. So a person can have diabetes plus asthma plus BP plus thyroidism, okay, or a mix of these. So if you have hypothyroidism, your asthma will be taken care of, not just by the Kumbhak that we teach, but also by your customization. Miss Priya says she is morbidly obese, very fatty after thyroid. Would it help her? Yes, absolutely, ma'am. 100% it will help you. We don't have the time and space to show you the data as to how many people actually lose weight because of Kumbhak. और अभी तक हम वेट लूज करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं. कभी दौड़ते हैं, कभी कुछ खाने में बहुत सारी चीजें हटा लेते हैं. But with Kumbhak, the system itself starts reducing weight. There are two ways of looking at it. Either you will lose in kgs or you will lose in inches. So काफी लोगों का weight कम नहीं होता है, but suddenly their belly is gone, their paunches are gone, and they have a better looking personality, so to say. So Miss Jyoti, she has a 7-year-old daughter who has thyroid since birth. Ma'am, you will need to contact us separately about this because this program is meant for people who are 16 years and above. Children are not, it is not advisable for children to do the Kumbhak that we teach in these classes. They need to be handled differently. Okay. Miss Kamini from Facebook, she says that protein lene se she has diarrhea. वेट भी कम नहीं हो रहा है, रनिंग कर रही हैं वो, थायराइड का टेस्ट कराया, उसका प्रॉब्लम है. शी इज एबल टू लूज वेट बट अ लिटिल बिट and age is 50. Should she be doing this? Yes, you should be doing this because you are telling us that if you are getting, if you are not able to hold food and you are getting loose motion, that's so therefore there is a problem in your detox aspect. Okay, there's an imbalance over there, and also not just detox, also your distributory aspect is impacted. So if you come to the program, your diagnosis will tell us why exactly all these problems are happening, and you can get out of them. You can then run for fun and not just to lose weight. Yeah.
So thyroid and frozen shoulder. Again, it is a general thing. I will keep on repeating. If your main problem is thyroidism, you have frozen shoulders, you have weight issues, you have digestive issues, you have hair fall issues, or dry skin issues, or even other related complications like BP, asthma, diabetes, etc. They'll all be addressed in this program.